Can everybody hear me clearly in the back? Yes? Okay. Welcome. So today we're going to talk about Ramayana, and we're celebrating this for the Diwali function. As we know, इंडिया में तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं और हर एक जगह पे दूसरे लोग दूसरी तरह से त्यौहार मनाते हैं, मगर दिवाली का एक त्यौहार है जो सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। फिर भी लोग अपनी अपनी जगह में थोड़े अलग तरीके से मनाते हैं। तो दिवाली ये एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हमारे लिए। दिवाली की इम्पोर्टेंस तो सब जानते ही हैं, गुड ओवर इविल की विक्ट्री, अच्छाई की बुराई पे जीत। That's it. So Diwali, as you know, the word comes from the word Deepavali. Deepavali is a combination of two words, Avali and Deep. Avali means a row and Deep means Diya. And it signifies when Bhagwan Sri Ram came back with Sita and Lakshman to Ayodhya, it's the citizens of Ayodhya, because it was a dark night, they lit their path with a row of lamps. So that's where the tradition for Festival of Lights that we celebrate comes from. तो आज हम देखेंगे रामलीला अपने छोटे बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुत करेंगे। सबने रामलीला देखी है इंडिया में, टीवी पे, शो पे, तो आज ये बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो पहला सीन देखेंगे जिसमें राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ कोर्ट में बैठे हैं और राज तिलक की बात कर रहे हैं। Curtains, please. My dear queens, I have decided to make Ram, my eldest son, the king of Ayodhya. He is the great son of the Raghukul, and the people of Ayodhya love him. O great king, I respect and agree with your decision. Ram will be a worthy successor of the Surya Vansh. I agree with Kaushalya Didi. My lord, I do not agree with your decision. You have promised me 2 wishes, and I want you to grant me those today. What do you desire, my dear Kaikai? My first wish is that Bharat will be the king of Ayodhya. My second wish is that Ram will be sent to the forest for 14 years. Oh, Kaikai, why are you doing this to me and my dear Ram? Oh dear mother, I will honor my father's word and leave for the forest right away. Please call dear Bharat and declare him the king of Ayodhya. Oh, Aryaputra, I'll follow you wherever you go. I will come with you too, Bhaiya. Bhaiya, I do not agree with this. Only you should be the king. Dear Bharat, I appreciate your feelings. Please take care of our parents and the people of Ayodhya in my absence. इसको पता है वो दासी का नाम क्या था? गुड जॉब। इजी क्वेश्चन। हमें हमारे फैक्ट्स बराबर चेक करके आने पड़ेंगे अभी। लेकिन आपको पता है राजा दशरथ को जो संतान हुई थी 4, उसकी स्टोरी क्या है?
तो राजा दशरथ को संतान बहुत सालों से नहीं हुई थी। 3 रानियों के साथ वो उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने एक महायज्ञ रचा था और वो महायज्ञ अग्निदेव के लिए रचा था। और अग्निदेव वो यज्ञ के बाद बहुत प्रसन्न हुए थे और इसमें अग्निदेव ने उन्हें एक खीर का कटोरा दिया था और उनमें वरदान दिया था कि जो भी ये कटोरे से खीर खाएगा उसे बच्चा होगा। तो तुरंत राजा दशरथ ने अपनी सारी रानियों को आदेश दिया था कि आप खीर इसमें से खा लो। तो इस खीर खाने से सब रानियों को सुपुत्र हुए। तो कौशल्या माता को श्री राम, सुमित्रा को 2 हुए थे क्योंकि उन्होंने 2 बारी खीर खाई थी। लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न एंड देन कैकेयी को भरत हुए थे। वो तो पता है ना। तो राम भगवान जो है, he was an ideal person in a way. When the story was told, he embodied all the qualities that would make up an ideal person that we should follow and strive for. Traits like honesty, integrity, intelligence, bravery, empathy, but most important quality that Bhagwan Ram had was the ability to inspire people to be good from within. And that he did not just by telling people what to do, but demonstrating with his actions how to live a good life. And that is what we emulate in Ram. When we look at Ramayana, all the qualities that are emulated through the character. Just like Shri Ram, Bharat was also very virtuous and respectful to all the elders. He actually never even, while ruling over Ayodhya, he never sat on the throne. He was so respectful, he just kept Shri Ram's sandals on the throne and let that rule the kingdom. So, how long, किसी को ये पता है कि कितने साल उन्होंने वनवास काटा था? ये भी इजी क्वेश्चन। पर कहाँ काटा था? वो तो हमें भी पता है। उत्तर आया सबको? पंचवटी में था। ओके, तो चलो एक बात और पूछते हैं। दिवाली सब दूसरे लोग सब जगह पे लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं, बराबर? तो एक तो बात सही है कि दिवाली 4 या 5 दिन का त्यौहार होता है, जैसे हमारे सारे त्यौहार होते हैं। शादी भी 4-5 दिन की होती है, डिवोर्स कम दिन सुनाता ना जो करेगा। तो वो 5 दिन जो दिवाली के हैं, उसमें गुजरातियों में हम लोग 5 नहीं 7 दिन का त्यौहार मनाते हैं, राइट? दिवाली तक कौन से दिन से शुरू होती है पता है आपको? धनतेरस। गुजरातियों में हम लोग 11 और बाग बारस मनाते हैं, बराबर? और वो दिन में क्या करते हैं गुजराती लोग? वो सब पूरे कल्चर में लोग करते हैं, खाना पकाते हैं और शॉपिंग जाते हैं, राइट? ओके, so we'll start with scene 2. Curtains, please. Swami, look at that beautiful golden deer. Please bring it to me. I want to play with it. Dear, I shall bring the golden deer for you. Lakshman, please take care of my Sita in my absence. There are many demons and rakshasas in the forest. It's been a long time since my Lord Ram left. I hope he is safe. Save me! Save
save me! Lakshman, help me! Sita, help me! Aryaputra is in trouble. Brother Lakshman, please go and help him. Shri Ram asked me to protect you and not leave you alone. I want you to go now and help him. Okay, I will go. Please don't cross this line until I return. This will protect you. पूरी स्टेज ही ले जाए। Bhiksham Dehi, please give me some food, I'm hungry. Bhiksham Dehi, please give me some food, I'm hungry. Please come inside and take some food. Are you insulting me, old lady? If you wish to give me some food, then come out and give it to me. All right, O Sadhu, as you wish. Oh, evil Ram, leave Sita alone. Oh, stupid bird, go away or else I'll destroy you. तो ये सीन में आपने देखा कि सीता जी का हरण रावण ने किया है। क्या आपको पता है स्टोरी ये सीता का हरण रावण ने क्यों किया था? स्टोरी बता। तो हुआ ये था कि राम जी और ये सब जंगल में थे। शूर्पणखा एक दिन घूमते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ राम जी को देखती है और बस प्यार हो जाता है। तो सोचती है चलो प्रपोज कर देती हूँ। अब राम जी तो लेकिन मैरिड थे सीता जी से, तो वो तो मना कर देते हैं और वो सोचती है ये कैसे हो गया। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है इस पे। वो कहते हैं कि इसका तो बस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो शूर्पणखा सोचती है चलो मैं सीता को ही मार देती हूँ तो फिर क्या, राम जी मेरे ही होंगे। तो इसलिए लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके नाक और कान दोनों काट देते हैं और फिर वो भागी हुई जाती है अपने भाई रावण के पास और कहती हैं कि बदला लो। तो जैसे आपने देखा वो पिछले सीन में जटायु को कैसे बेरहमी से रावण ने घायल कर दिया था, तो अगले पंख में हम देखेंगे राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए जब निकलते हैं तो जटायु को मिलते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वन मोर फैक्टोइड। तो चलो हम दिवाली के दिन से ही शुरू करते हैं। 11 और वाघ बारस की बात हुई थी, राइट? और धनतेरस को दिवाली शुरू होती है। फिर कौन सा दिन आता है? काली चौदस। और काली चौदस का सिग्निफिकेंस क्या है पता है? हम काली चौदस क्यों मनाते हैं? वाह, कोई नहीं है ऑडियंस में। ओके, सो काली चौदस हम मनाते हैं नजर से बचने के लिए, इसीलिए वो लोग काला टीका लगाते हैं। वहां से हमारी ट्रेडिशन आती है नजर बचाने के लिए। ओके, सी Open. I'm reading up with it.
left her in the hut, Bhaiya. Oh Ram, Lakshman, Ravana took Sita towards the south. I tried stopping him, but he cut my wings off. Dear Jatayu, I thank you for telling us that. Oh Lakshman, how will we find Sita now? O Lord Ram, I'm your humble servant, Hanuman. I will help you find Sita Mata. Dear Hanuman, I welcome you and have full faith that you shall help us find Sita. दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना। तो आपने देखा कैसे राम, लक्ष्मण और हनुमान निकल पड़े माता सीता को ढूंढने के लिए, और हनुमान जी ढूंढते हुए माता सीता को लंका में पहुंच जाते हैं। क्या आपको पता है सीता माता को लंका में कहाँ रखा गया था? हमारी ऑडियंस बहुत बढ़िया है, सबको सारे आंसर आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट सीन अशोक वाटिका में क्या चल रहा है वही होगा। Oh Sita, why do you wait and cry for Ram? I am the most powerful king in all three worlds. Marry me. Oh, evil Ravan, you can't win me over. I've given my son, man, I'm done to Shri Ram. Go away. Oh Sita, I have given you a full year to submit to me, but you have always rejected me. Now I give you 2 months. If you do not agree, I will kill you. Oh, foolish Ravan, I'm warning you. Send me back to Shri Ram and beg him for forgiveness. Only that will save you and your golden Lanka. तो अशोक वाटिका में रावण और सीता माता के बीच में आपने जो सीन देखा, वहाँ पे जब हनुमान पहले पहुँचते हैं तो सीता माता को भगवान श्री राम की एक निशानी बताते हैं। क्या? Right. Man, answers are too easy. Okay. तो वो जब निशानी बताते हैं तो सीता माता को बोलते हैं कि भाई आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको यहाँ से उड़ा के ले जा सकता हूँ। तो सीता माता ने उस वक्त क्या बताया था हनुमान जी को? Right. तो सीता माता ने आदेश दिया था हनुमान जी को राम को भेजने के लिए। तो ये एक ट्रिविया पीस हो। अभी थोड़ा सेटअप हो रहा है। तो आपने देखा है यहाँ पे कि राम और सीता का कैरेक्टर चेंज थोड़ा हुआ है, बराबर? वो थोड़े बड़े हो गए, हमारे हिंदी सीरियल की तरह, जैसे 10 years फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं ना, वैसे कभी कभार कैरेक्टर जरा ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, तो फिर हमें उनको निकालना पड़ता है और नए कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं। तो अब हम जाते हैं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हनुमान जी लंका में जाते हैं रावण से मिलने के लिए, अशोक वाटिका में सीता माता को मिलने के बाद। जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतना। Ravan, I am here to take Sita Mata with me. Prabhu Sri Ram has sent me to warn you.
Let her go, or I'll destroy your kingdom. Oh, foolish monkey! How dare you challenge me? I am the most powerful king in all 3 worlds. Tell Ram that Sita is mine, and I shall marry her. Guards, catch him and set his tail on fire! Hey, Sriraam! देखा आपने कैसे हनुमान जी ने लंका में भस्म मचा दी। लंका को जलते हुए देखा किसी ने? आपने देखा नहीं लंका जला दी हनुमान जी ने? स्प्रिंकलर्स ऑन नहीं हुए। बहुत बढ़िया। हमें कोर्ट के हिसाब से जला ली थी लंका यहाँ पे, वरना हमें फॉल वापस नहीं देंगे। तो हनुमान जी ने जब लंका जलाई और वापस राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं सीता माता का आदेश देने के लिए, तो आओ देखते हैं वो पॉइंट। Oh Lord Ram, Sita's in Lanka and Ravan will not let her go without a fight. All right, Hanuman, if that's what he wants, that's what it'll be. Lakshman, please order the Vanar Sena to march towards Lanka. तो अब रावण तो माने नहीं, अब कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था, एक ही ऑप्शन है वॉर, युद्ध। तो कौन बता सकता है कि रावण की सेना में कौन कौन था? मेघनाथ, कुंभकर्ण का तो सबको पता ही है। 6 महीने सोते थे, 6 महीने खाते थे, बस यही उनकी जिंदगी थी। तो रावण की सेना में मेघनाथ, कुंभकर्ण और सारी वानर सेना थी। कोई डीमन था। तो वो बता सकता है कि मेघनाथ कौन था? रावण का बेटा। वानर सेना राम के साइड पे थी, और वानर सेना में कौन कौन था? और कौन? हनुमान, अंगद। अंगद की खासियत क्या है? अंगद कौन था? बाली का बेटा। और बाली कौन था? और वानरों का राजा था, मगर उसमें कुछ गुण अच्छे नहीं थे। तो अंगद उसका बेटा होते हुए भी उसने साथ अपने फादर का नहीं लिया था, मगर अपने चाचा का साथ लिया था, क्योंकि वो न्याय की तरफ था, अन्याय की तरफ नहीं। तो इसकी खासियत ये है। तो आओ देखते हैं महायुद्ध में क्या होता है।
that Ravan's life lives in his belly button. I hope आपको मजा आया हो छोटी छोटी रामायण की धरती देखते हुए। बच्चों ने बड़ी मेहनत से ये प्ले किया था और आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब अगर 2 मिनट रुके तो हम सारे कैस्ट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। कर्टन प्लीज। First one is going to be Jignesh, who played as Bharat and Marich. Diya as Sumitra and Ravan Sena. Shareen as Choti Sita Mata and Vanar Sena. Janvi as Kai and Jatayu. Yatharth as Lakshman. Shaurya as Chota Ram and Hanuman. Bhavna as Kaushalya and Badi Sita Ma. Jashan as Ravan. Aman as Maharaj Dashrath and Bade Ram. We would also like to thank our production team, Roshni Bhatta, for designing the props and the backdrop. Rajesh and Anita for costume design. And special thanks to my dear hubby for the concept, script, direction, I was a smart boy, fat boy. And thank you audience for all the participation. How about giving it up for our master computers over here, Hetu Bhatta and Shahat. Thanks a lot, guys.